السلام علیکم جی سب دوستوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بزرگوں کی 60 سالہ خدمات پر قوالی کے اوپر آج پہلے گورنر صاحب نے ان کو اعزازی شیلڈز جو ہیں وہ دی ہیں، اور آج ہی جو ہے ایک تقریب ہو رہی ہے جہاں پہ ان کی تاج پوشی کی جائے گی، اور جو ہے محفل سماع کا بھی ہوگا یہاں پہ۔ تو آپ سب دوست جو ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اسی پیج پہ، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو اجاز بھائی 1 منٹ آئیے گا ذرا۔ لال مفر پائے خالی بلا کے یہ کافی تلاوت کروانے ہاں ہاں ویسے تلاوت کے لیے نا وہ تلاوت آنا صاحب آپ نے کرنی ہے تلاوت کے لیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز دوست جو یہاں پہ موجود ہیں، جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے، میں چودھری عامر صدیق اپنی طرف سے بھی، اپنی فیملی کی طرف سے بھی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی جو ایک تقریب ہے وہ ہمارے لیجنڈ پاکستان کے، نہ صرف پاکستان کے بلکہ برے صغیر پاک و ہند کے، پوری دنیا کے نامور قوال استاد میر علی خان صاحب اور استاد شیر علی خان صاحب جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 60 سال قوالی کی ہے، اور اس کا جو باقاعدہ تقریب ہے وہ آج گورنر ہاؤس میں ہوئی، اور گورنر صاحب نے ان کو انوائٹ کیا اور وہاں پہ ان کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا اور بھی گفٹ دیے گئے، اور بہت زیادہ استاد میر علی خان صاحب اور استاد شیر علی خان صاحب، میں نے کہا اب یہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کے بیٹے اعجاز جو ہیں وہ قوالی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ابھی 1 منٹ پہلے ان کے سیکرٹری کا فون آیا ہے کہ جی ہم نے وہ تقریب جو ہے نا وہ دوبارہ رکھنی ہے، اور وہاں پہ ان لوگوں کی ہم نے، گورنر صاحب کہتے ہیں جی قوالی سننی ہے، یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو اس تقریب کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں رانا دلشاد صاحب کو کہوں گا وہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد جو ہے استاد میر علی خان صاحب اور استاد شیر علی خان صاحب کو جو ہے وہ ہم انوائٹ کریں گے کہ وہ اسٹیج پہ جلوہ گر ہوں، اور پھر ہم ان کو ان کی آنر میں دیکھا کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی نام سے پہلے استاد ضرور لگاتا ہے، اتنا اس کو آتا ہے، مگر یہ حقیقت میں استاد ہے جنہوں نے اپنا فن متعارف کرایا، اپنی سٹرگل کے ساتھ انہوں نے یہ مقام پایا، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے
बड़े नाम जैसे कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम था, उनकी जिस वक्त तूती बोलती थी उस वक्त इन्होंने अपना लोहा जो है वो मनवाया, और मैं कहूँगा इनके लिए एक दफ़ा तालियां होनी चाहिए। अब राना दिलशाद साहब से गुजारिश करूँगा कि इस्तकबालिया से पहले आएँ और तलावत कुरान पाक से इस तकरीब का इनकाद शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, कवाली के बेताज बादशाह जनाब उस्ताद शेर अली मेर अली साहब वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन उनके तशरीफ़ लाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि चौधरी अहमद साहब ने कहा कि उस्ताद का वर्ड वो शख्स भी अपने नाम के साथ लगा रहा है जिसने कवाली शुरू की है, अभी 6 महीने हुए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री की जानब से इनको उस्ताद का खिताब दिया गया। तो उस्ताद शेर अली मेर अली साहब ने अपनी आवाज़ का जादू, अपने सुरों का जादू दुनिया भर में चलाया और अपनी छाप जो है हर जगह छोड़ी। तो मैं चौधरी अहमद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। तो आप सबकी भरपूर तालियों में उस्ताद शेर अली मेर अली साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना इनकी कवालियों से महसूस हुए। बेशुमार कवालियाँ गाई इन्होंने और शोहरत दबाम हासिल की अपने आवाज़ से। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप सब एक बार प्लीज़ स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो इनको दें, खड़े होके एक बार इनके लिए क्लैप करें, क्योंकि 60 साल का अरसा कम नहीं होता जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का वक्त किया है सिर्फ और सिर्फ सूफीज़म के नाम, कवाली के नाम। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इनकी खिदमत को भरपूर तरीके से सराहा जाए। आज 60 साल के बाद, 60 साल की मेहनत के बाद ये दिन इनको देखने को मिला है और यकीनन ये इसके मुस्तहिक है। भरपूर तालियां उस्ताद शेर अली मेर अली। चाहे वो कवाली अल्लाह जाने वे माही के नाम से हो या फिर शामा पै गईयां, बेशुमार कवालियां ऐसी गुनगुनाई इन्होंने, ऐसी पढ़ी कि जब भी उनको सुना जाता है तो यूं महसूस होता है कि कोई रस कानों में घोर रहा है और उसकी मधुरता कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, चाहे जितनी बार मर्जी आप उसको सुन लें। तो जनाब उस्ताद शेर अली मेर अली साहब स्टेज पे आ चुके हैं। चौधरी आमिर साहब का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि फ़न मौसीकी को इतना बारीकी से समझना, उससे इस कदर मोहब्बत रखना और लेजेंड्स को उनकी इज़्ज़त अफसाई करना, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट को उसकी जितनी भी शोहरत हासिल करे उसके मुताबिक, नाम के मुताबिक उसकी इज़्ज़त अफजाई ना की जाए तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादती होती है। तो चौधरी साहब ने आज इनकी वसादत से, चौधरी साहब की वसादत से गवर्नर हाउस में भी तकरीब का अहतमाम किया गया। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनके फ़न को देखते हुए इस बड़ी तकरीब का अहतमाम किया। तो तकरीब का बाकायदा अहतमाम करने से पहले, शुरू करने से पहले एक शेर है जो कि मैं उस्ताद शेर अली मेर अली के नाम करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि तूए हीरा तूए मोती फुल्लां दी खुशबोई, तूए हीरा तूए मोती फुल्लां दी खुशबोई, तेरे जे पुत जम्मण मावा किधरे किधरे कोई। तो जनाब अब मैं नाते पाक के लिए जो दावत देना चाहूँगा तारक हजवेरी साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और बाकायदा तौर पे नात पढ़ के तकरीब का जो शुरुआत है वो कर सकें। तारक हजवेरी साहब।
میں جناب علی جناب خان صاحب استاد مہر علی خان استاد شیر علی خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چودھری عامر صاحب کا بھی میں مشکور ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان جیسے فنکاروں کو یہ اعزاز بخشا اور میں مبارک کی مساکیں درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے جمال یار کی حسرت جو مریض ہوا جمال یار کی حسرت جو مریض ہوا جمال یار ہی اس کا کبھی ہوتا ہے آخری شیر بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں نبی در کا گدا کب غریب ہوتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں درخواست کروں گا شہباز قمر فریدی صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور دو اشعار جو ہیں وہ نعت پہ پڑھیں. اور اسپیشل فرمائش ہے جی استاد شیر علی میر علی صاحب کی، آپ کی نسبت بھی ہے اس گھرانے سے، ملک پاکستان کا بڑا نام جناب شہباز قمر فریدی صاحب. سب سے پہلے تو چودھری عامر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ٹرپ کا اہتمام کیا اور اتنے بڑے بڑے لیجنڈ حضرات کو مدعو کیا. کچھ ناچیز کو بھی بلوایا. میں تو اپنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرے استاد تشریف فرما ہیں
जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी होगी। लोगों से इजाज़त से क़िबला शाह साहब एक अंतरस्ताई बस, मैं क्या सुनाते हैं आप लोगों को, सिर्फ दुआएं लेनी है। चलो ठीक है। उजाल ज़हन में है, रोशनी ज़मीर में है, उजाल ज़हन उजाल ज़हन में है, रोशनी ज़मीर में है कि खाक मदीना मेरे खमीर में है कि खाक मदीना मेरे खमीर में है कि खाक मदीने जाऊंगा एक दिन जरूर जाऊंगा कि ये सफर तो मेरे हाथ की लकीर में है कि ये सफर तो मेरे हाथ की लकीर में है कि खाक को मदीना मेरे खमीर में है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं चंद मेहमान होंगे जिनको बारी बारी स्टेज पे मदऊ करूंगा और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2-2, 3-3 मिनट के लिए जो तारीफ़ी कलमात है जनाब उस्ताद शेर अली मेर अली साहब के लिए, क्योंकि आज स्पेशल उनका दिन है और उन्हीं के लिए ये दिन सजाया गया। पहले गवर्नर हाउस था, अब यहाँ पे तकरीब का अहतमाम किया गया। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा हाजी नज़ीर साहब को। हाजी नज़ीर साहब, आप जहाँ पे भी मौजूद हैं काइंडली तशरीफ़ लाएँ स्टेज के ऊपर, क्योंकि बड़ी बारीक बीनी के साथ ये हमेशा मौसीकी को सुनते भी रहे हैं, बड़े बड़े कवालों को इन्होंने सुना है और बड़ा एक्सपीरियंस भी है इस हवाले से। इनका बड़ा शगफ रखते हैं और सूफीज़म के हवाले से, सूफी कलाम के हवाले से बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो हाजी नज़ीर साहब। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। हाजी साहब माशाल्लाह पद्दर से, गुजरात से आगे, खारियाँ के आगे से सिर्फ इनकी मोहब्बत के लिए तशरीफ़ लाए हैं जी। इनके लिए बहुत सी तालियाँ। ये उस्ताद शेर अली खान साहब के जो उस्ताद थे बख्शी सलामत मुबारक अली खान साहब, ये उनके भी दोस्त भी थे और उनके भी ये सूफ़ी थे और उनके भी ये बड़े फ़ैन थे। तो उनके बाद फिर इनका जो प्यार मोहब्बत है वो शेर अली मेर अली खान साहब के साथ बड़ा दीदनी था जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चौधरी अहमद साहब को बहुत मशहूर हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त महफल सूफिया की और दुआ हज़रात की सजाई है
आपको क्या की बुराई से और मुझे सब चीज़ को भी मौका दिया इस सादत का। छोटा सा वाक़या बयान करूँगा और उसके बाद ख़त्म करूँ बात। इस्लामाबाद में जब बनना शुरू हुआ तो मैं बतौर इंजीनियर वहाँ पे पोस्ट हो गया। तो बड़ी इमाम साहब पे क्योंकि हमारे घर में ये प्रोग्राम होता था, हमारे बहुत ज़्यादा सूफिया तब लग सकते थे, तो मुझे शौक़ था, मैं जुमेरातें वहाँ कराता था और कुआरी कराता था। कुआर कोई बात पिंडी में अच्छा नहीं था। तो एक सूफी खुदा बख्श साहब होते थे, कॉफ कर जब ले लिया तो बड़े बारीक आदमी थे, तो उनकी वहाँ पोस्टिंग हुई। तो वो कहने लगे यार उस सैतुम आना, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कुआर बुलाए हैं। मैंने कहा अच्छा जी। उसमें जनाब यूसुफ खान साहब पहली दफ़ा 67 में परिमाम साहब आए, और एक अब्दुलरहमान कांच वाले थे, वो इसके बड़े नामी ग्रामी। तो उनका एक बच्चे कौन हैं मेरे अली शेर सर, उनको मैंने बुलाया, तुम्हारे सुनने वाले हैं, क्योंकि बख्शी सलामत के हवाले से जानता था। तो जब मैंने इनको सुना वहाँ पे, बाकी भी सुने, तो मैं इनका फ़ैन हो गया। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई प्रोग्राम किसी दोस्त हो, आपके यहाँ शादी हो, किसी के बच्चे की पैदाइश हो, उस पर इन्होंने मेरे साथ ताउन ना किया हो, और मेरे एक हल्के से कहने पे तशरीफ़ लाए हैं। इनका आज मैं शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ बहुत साथ निभाया है। हालांकि मेरी तबीयत बड़ी जज्बाती सी है, और कॉली के साथ साथ इनको बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मुझे नाराज़गी में। तो मैं आपको एक बुराई से देता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने नवाजा भी बहुत ज़्यादा है, दिली लिहाज से भी, दुनिया लिहाज से भी। आप सूफी हैं और आपकी निस्बत जो है वो बहुत मजबूत है। अल्लाह ताला आपको ये तरक्कियाँ दे और तरक्कियाँ दे, और आप अल्लाह का भी शुक्रिया फिर चौधरी अहमद साहब की तरफ से अदा करते हैं। शुक्रिया जी हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं जिनको स्टेज पे दावत देने जा रहा हूँ, ओहदे के हवाले से भी मैं उनको बता देता हूँ, और इसके साथ साथ बड़ी अहम शख्सियत भी हैं, जनाब अरशद महमूद साहब, जो कि सेशन जज हैं हमारे फैसलाबाद में। तो अरशद साहब वैसे तो अपने जॉब की वजह से किसी को मिलते नहीं थे, लेकिन मुझसे मुलाकात हुई, थोड़ा प्यार मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं और जिन्होंने ये प्रोग्राम सारा अरेंज किया है, सबसे पहले तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी शख्सियात को और कवाली की दुनिया में एक नाम पैदा करने वाली शख्सियात को यहाँ पे मदऊ किया है और उनको इस इज़्ज़त से नवाजा है। ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा एक ख़ास मौका है कि हमें उनसे मिलने का भी मौका मिला है और उनको करीब से सुनने का, देखने का मौका मिला है। मैं इनकी कवालियाँ तो बड़े अरसे से सुनता था, इनका फ़ैन भी था, और मैं यहाँ पे चेहरे देख रहा हूँ, उनकी भी मैं कवालियाँ सुनता हूँ और लोगों की भी सुनता हूँ, नुसरत साहब की भी सुनता हूँ, लेकिन शेर अली, मेहर अली की कवालियाँ मैं बड़े शौक़ ज़ौक़ से, बड़े अरसा दराज से, जब सीडियाँ होती थी, जब कैसेटें होती थी, तब से सुनता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। मेरी पोस्टिंग हुई तो अनान बुखारी साहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने मिलवा दिया। तो मैं अक्सर इनके यहाँ जाता हूँ और बैठा रहता हूँ, बातचीत होती है और म्यूज़िक के हवाले से बात होती है, कवाली के हवाले से बात होती है, और जहाँ जहाँ इन्होंने परफॉर्म किया उन वाक़यात के हवाले से बात होती है। तो मैं उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ, और ये उसी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, और माशाल्लाह आज भी उसी तरह से। अभी भी मैं शेर अली साहब से बात करता हूँ फरमाइश, तो वो गुनगुना भी देते हैं, तो वो मैं उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ, अब भी एंजॉय करता हूँ माशाल्लाह। एजाज़ भाई से बड़ी दोस्ती है, एजाज़ भाई की कवालियाँ भी सुनते हैं। एजाज़ भाई हमें बुलाते भी रहते हैं, मुख्तलिफ मौके पे बुलाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक ख़ास मौका है जो इनको रस्म ताज पोशी पे आज मदऊ किया गया है। और ख़ास कर मैं एक दफ़ा फिर जो यहाँ के इंतज़ामिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अजान की ब्रेक है जी, अजान हो जाए फिर प्रोग्राम को यहीं से आगाज़ करेंगे दोबारा। सलीम
बेटी पढ़ गई मेरे पास। तो मेरी बेटी की शादी में नहीं आ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पता भाई ने करा ना सही खान साहब का मालूम है ना, बाद में प्रोफेसर सही खान साहब, सही खान साहब, तो मेरा बड़ा पुराना पहले। ओके जी, अब मैं दावत देना चाहूँगा मियाँ अब्दुल रहमान साहब को कि आप जहाँ पे भी मौजूद हैं सर तशरीफ लाएँ स्टेज पे और चंद लफ्ज़ उस्ताद शेर अली मेहरअली साहब के लिए। बहुत सारी तालियाँ मियाँ अब्दुल रहमान साहब के लिए। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वला अलैका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, उनकी मेहनत और ख्वाजा मोहम्मद याद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से इनकी वाबस्तगी ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहब से की दुआओं का असर है कि आज ये जिस मुकाम पर पहुँचे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कवालों की सफ में ये हजरात कवालों की लता है। तो इन तमाम मामलात में इनको अबूर हासिल है। अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। हैं बड़े बड़े नाम हैं, फतेह अली खान, मुबारक अली खान, नुसरत अली खान, रशीद अहमद फरीदी, बख्शी सलामत, मियाँ दाद खान साहब, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं ये, बड़े बड़े उस्ताद को आग गुजरे हैं। और शेर अली मेहर अली को जो मुकाम मिला है वो एक अलहदा मुकाम है। और अब इनके पीरो मुर्शद गुलाम कुतुबुद्दीन साहब तशरीफ लाए हैं। ये इनकी दुआओं का असर है, आज ये जिस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं बंदा नाचीज अब्दुर्रहमान कादरी सजादा नशीन हजरत सैयद शमसुद्दीन कादरी लाहौर का खादम हूँ। और अल्लाह पाक मेरी ये दुआएं हैं कि अल्लाह पाक शेर अली मेहरअली साहब को सलामत रखे, इनकी आल औलाद में भी वही सोज़ो रंग, वही मामला, वही बात बने। और चौधरी आमिर साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कुतुबुद्दीन साहब हमारे साथ दरमियान में मौजूद हैं और बेशक इनकी दुआओं का नतीजा है कि ये नाम, ये शोहरत इनको मिल पाए। तो जनाब अब नेक्स्ट मैं बाबा यहिया साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे और अपने कीमती लफ्ज़ जो हैं जनाब उस्ताद शेर अली मेहरअली साहब के लिए बयान करें। जनाब बाबा यहिया साहब, भरपूर तालियाँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाबा मोहम्मद याहिया खान है। मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे आका का निस्बत साथ से उतार के जब मुझे कोई पुकारता है तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं इनका आशिना नहीं हूँ और जैसे मैं मुसलमान ही नहीं। अपने आका के नाम को कभी उनकी निस्बत को अपने आप से जुदा मत कीजिए। यही एक नाम ऐसा है जिसके साए के अंदर आपकी शख्सियत, आपके ईमान, आपके ईकान और आपकी मोहब्बत और आपकी अक़ीदत का पौधा परवान चढ़ता है। नहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पूरा नाम ले लीजिए। हम चौधरी तो साथ लगा लेते हैं, लेकिन किसी शख्स के साथ मोहम्मद लगा हुआ है, उसे हम कैसे जुदा कर सकते हैं? प्लीज़ मीन इट। आज मैं इस महफिल में आके मेरी मुख्तलिफ सी कैफियत हैं। कुछ ऐसे अचंभे भी मेरे साथ वाक़या हुए हैं कि जो मुझे मुतवक्को नहीं थे। कुछ ऐसी शख्सियात से मुझे आज आँख मिलानी पड़ी, उनके पाँव छूने पड़े, उनके पास आना पड़ा, उनकी बात करनी पड़ी कि जिनके दीदार के लिए मेरी आँखें तरसती थीं। और चौधरी साहब, आमिर साहब का मैं मशकूर हूँ कि आज उन्होंने ऐसा एहतमाम किया है कि जैसा लगता है कि दीन दुनिया हर चीज़ संवर गई। मेरे करीब, मेरे सामने, मेरे आमने सामने बड़े खूबसूरत लोग मौजूद थे। मुझे अपने देरीना दोस्तों से भी आज मोहब्बत और याद करने का मौका मिला कि जिनके लिए मैं तरसता था। बहुत से मेरे बच्चे ऐसे कि जो मेरे हाथों में परवान हुए, मेरे हाथों में ही जवान हुए। इनके बुज़ुर्गों को मैंने सुना, वो पैदा मेरे सामने हुए, आज मेरे ही सामने वो जवान हुए, मेरे ही सामने उन्होंने नाम बनाया, मेरे ही सामने उन्होंने काम बनाया और मेरे ही सामने मुझे उन्होंने अपना दीवाना भी बनाया। मैं नहायत आजिज़ी से अर्ज़ करूँगा कि ये दो शख्सियात, मैं इनका दीवानगी के हद तक इनका मैं परस्तार हूँ। मेरे दीगर सारे फनकार जो हैं, मेरे बच्चे हैं, बड़े मुकम्मल बच्चे हैं, बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े पक्के सुच्चे और बड़े ही नफीस लोग हैं। मगर हर फल जो अल्लाह ने बनाया है वो अपनी अपनी कैफियत रखता है। हर फनकार अपना अपना मुख्तलिफ रंग और अंग रखता है। जंगल में सिर्फ शेर ही नहीं रहते, कुछ और जानवर भी रहते हैं। इंसानों में भी इस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अलहदा हैं। जब मोर नाचता है, जब पपिया पीबी करती है, जब बुलबुल चहकती है, तो यकीन करें कि हर एक की बोली अपने अपने रंग अंग में जुदागाना हैसियत के हामिल है। आज मैं ना एक महफिल में आया हूँ, बल्कि मुझे यूँ लगता है जैसे मैं किसी अंजुमन में आ गया, एक दबस्तान में आ गया। मेरे इर्द गिर्द ऐसे नायाब लोग बैठे हुए हैं कि जिनकी मोहब्बत और जिनके इखलास से मैं महक रहा हूँ। अभी तक मेरे सामने फूल ही फूल हैं, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, करीना ही करीना है। क्या खूबसूरत चेहरे, क्या खूबसूरत लोग, कैसे ज़ौक़ और ज़ौक़ के मालिक तशरीफ़ फरमा। जिस शख्स को देखता हूँ मुझे उसका चेहरा तलावत करने को जी चाहता है। मुझे मौसीकी से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा लगाव है। और यकीन फरमाएं कि शायद दुनिया में चंद ही लोग ऐसे पैदा हुए होंगे कि जो सुर से कभी ना कभी हटे ना हो या जुड़े ना हो, होते हैं। लेकिन मैं हर वक्त एक सुर के सैलाब में रहता हूँ। मेरे अंदर से सुरें ऐसी फूटती हैं कि जैसे पसीना निकलता है इंसान के जन्म से। मेरी हर कैफियत सुर से ही शुरू होती है, सुर पे ही कैफियत खत्म होती है। और इस सिलसिले में मुझे मोहतरम शेर अली मेहर अली साहब से बड़ी मोहब्बत मिली और बड़ी तक़वियत मिली और बड़ी जानकारी मिली मौसीकी के बारे में। और मैंने इनके कलाम से बचपन ही से मैंने इनको सुना, देखा।
اور مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ میں ان کے دنیا کے متعدد ممالک میں ان کے پروگرام دیکھنے کے لیے نہ محض گیا بلکہ ان کو تحسین بھی پیش کی. انٹرنیشنلی جہاں بھی گئے میری کوشش یہ ہوتی ہے میں جانے واپس. اور پاکستان میں جہاں پہ بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے یہاں میری کوشش اس میں پہنچتا ہوں اور ہمیشہ پہنچتا رہا ہوں. چاہے میں دنیا میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں ان کا پروگرام ہوتا ہے تو میں پہنچ ہی آتا ہوں. اس چیز کے یہ بھی گواہ ہیں کہ بابا جی ضرور آتے ہیں اور میں اپنی توفیق کے مطابق ان کے قدموں میں اپنی محبت اپنی عقیدت اور اپنی چاہت کو اس کے سر کو نیچا کر کے رکھتا ہوں اور محبتیں لیتا ہوں. آج مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور اس چیز کا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں شاید بوڑھا ہو گیا ہوں جبکہ یہ دونوں حضرات مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں. میں نے جوانی میں بھی سنا بڑھاپے میں بھی سنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت اپنا پیڑ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. میں اداس اس لیے ہو گیا. بچے ہیں تو بچے تو پھر بھی بچے ہیں تو جامعہ مسجد اگر موجود ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں اور قریب بھی ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. چاہے ادھر جا کے جوتیوں میں سیڑھیوں میں ہی جگہ ملے قریب ہو تو وہاں جانا چاہیے. تو یہ جامعہ ہے یہ ہمارا ایک ایسا دبستان ہے موسیقی کا جس کو فراموش نہیں کیا جاتا. یہاں پہ بڑے بڑے چاند سورج ستارے بیٹھے ہیں میرے بچے ہیں سارے. میں سب کی ہر معاملے میں شریک ہوتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں تحسین پیش کرتا ہوں. مگر یہ میرے بزرگ ہیں اور آج میرے دوسرے بزرگ بھی خسر صاحب بھی میرے سامنے تشریف فرمان ہیں. یہ بھی میرے استاد ہیں میرے یہ بزرگ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں اور بڑی محبت ہے میری. بالکل یہ سارے انسان سارے فنکار سارے اچھے لوگ مناسب جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ یہ سلامت رہیں اور کرم ہو. ان کی اولاد بھی بہت اچھی ہے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ان کو سلامت کرامت رکھے. پھر آپ کا نام لینے میں ہوگی ہم جی بالکل بابا جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں لیکن میرے پاس جو نام لکھ کے آئے تھے میں نے اس طرح ہی مجھے پھر بھی ڈبل چیک کرنا چاہیے تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو حاجی نذیر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ان کی کرسی جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیج پہ موجود ہے. ارشد محمود صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب میں سید شہباز شاہ صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور چند کلمات جو ہیں وہ جناب استاد شیر علی نور علی صاحب کے لیے. جناب بھرپور تالیوں میں سید شہباز شاہ صاحب. آپ سب کے لیے سید تو ایک سائڈ پہ رہا لیکن میں السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم. آج اتنے بڑے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سنا ہے کہ بڑوں کے انڈے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے جھنڈے بھی بڑے ہوتے ہیں. میں پچھلے مہینے مدینہ شریف گیا تو میں نے دعا میں جتنی بھی دعا کی میں نے کسی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے نہیں کی. میں نے صرف موسیقی کے لیے دعا کی اور دعا پھر وہ لگا دی جا کے آئی ڈی کے اوپر. ان کی سنا ہے تو بات سیکھی ہے. یہ مختلف اپنے سروں میں توحید سمجھا دیتے ہیں. ان کا ایسا ایک طریقہ کار ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. میں نے ایک دفعہ ان کی قوالی سنی بے شمار دفعہ سنی تو انہوں نے ایک شعر بولا. اس شعر جا کے مجھے اٹیچ اللہ کے ساتھ کنیکشن ملا دیا.
मिलने का मतलब मुझे तस्कीन आई तो मिल ही गया होगा। तो वो शेर इन्होंने ऐसे कहा और शाह ने ऐसे किया, इजाज़त है उस्ताद जी, हम भी आपको उस्ताद जी कहते हैं। तो इन्होंने कहा कम करना हुंदा है होर कोई, मैं होर कोई कर लैनी आ, मैं जाना हुंदा होर किते। गल कहा मैं उस्ताद जी तुहानू सूट मारना, बल्कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको सलाम करता हूँ। मैं भी थोड़ी बहुती बातें करता हूँ, मैंने आपसे सीखा। शेर मियाँ दादा भाई है मेरा, मैं नहीं कहता छोटा भाई है, मेरे बराबर का भाई है। बदर मियाँ दादा वो भी मेरा भाई था। आप मेरे बड़ों में शामिल हैं, वो मेरे बराबर वालों में शामिल है। तो मैं आपको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। यहाँ पे जितने भी हैं, जिन्होंने भी अरेंज किया है, ये सदीक है, बल्कि सदीक तो नहीं है, इसे सादिक कहना चाहिए, ये सच्चा है। इसने जिस तरह भी इस शख्स ने ये काम किया, हारियाँ तो मार दो, मैं क्या रोज रोज से बोल रहा हूँ। तो और भी उस्ताद जी आए हुए हैं इधर, बड़े नुसरत साहब के साथ सारी ज़िंदगी साथ रहे हैं। तो इनकी ताल का ये मुकाम है, कम से कम जिसका बदन हरकत ना करे तो ताल में सुना करता है। तो सुना रूह को जिंदा करती है। तो बंदा सुर सुनता है तो फिर सुर हो जाता है, सुर सुनता है तो सुर हो जाता है। एक शेर बोलूँगा, चला जाऊँगा। वो कहते हैं अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, आपकी नज़र, आप सबकी नज़र, अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढे सानी मोहम्मद, तो सानी तो बड़ी चीज़ है यार, साया भी ना मिलेगा। खैर हो आपकी, खालियत तो बंदगी, खिलादियत तो बंदगी। बहुत शुक्रिया। सैयद शहबाज शाह साहब स्टेज पे मौजूद थे और बड़े खूबसूरत अल्फाज उन्होंने बयान किए यहाँ पे। अब मैं दावत देना चाहूँगा, हमारी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और अदब के साथ, इल्म के साथ इनकी बड़ी मोहब्बत है। जनाब नूरुल हसन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप काइंडली तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए नूरुल हसन साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी खिदमत में जो शख्सियात और हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वहाँ खामोशी की ज़ुबान सीखनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब का हुक्म और इन्हीं की बदौलत में पहली बार उस्ताद शेर अली, मेहर अली, इनकी आवाज़ अंदाज से रूशनास हुआ। तो ये बाबा जी का एक और एहसान है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उनके टेलीफोन के अंदर में वो एक क्लारनेट और शहनाई और उसका वो एक अंग बड़ी देर रहा और वो बड़ी कैफियत में उसको सुनते थे और हम भी उससे फैज़-ए-आम हुए। चौधरी साहब के मुतालिक मुझे ये कहना है कि गवर्नर हाउस और आर्ट्स काउंसिल को इनसे सीखना चाहिए कि गवैयों पे, फनकारों पे कैसे मोहब्बत निछावर की जाती है, वो इनसे सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो बिलीगुर रहमान साहब है उनसे कहेंगे वो जो कवाली बनी है उस इवेंट की जिम्मेदारी इनको ही दें गवर्नर हाउस में, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक बड़ों का सवाल है, फरीदी साहब तशरीफ़ फरमाए, बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान बैठे हैं, साथीज़ा कराम बैठे हैं। बड़ों की आपको एक कमाल की बात बताऊँ, ये बच्चों को अपने कांधे पे बिठाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारा कद तो मुझसे बड़ा हो गया। ये होते हैं बड़े। और ये भी आप देखते हैं ये दिल बड़ा होता है तो कोई बड़ा होता है, दिल छोटा हो जाए तो बंदा बड़ा नहीं होता। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिल न दिया जाने, तो वो वाली कैफियत होती है। मैं कभी साथ शेर अली, मेरे दोनों को देखता हूँ और एजाज को देखता हूँ। तो गुल दाऊदी देखा तो अब्बा जी
अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे। उनको बहुत पसंद था ये फूल, और ये कोई 10 एक रोज़ के लिए आता है सर्दियों में, सख्त सर्दी में, और इसकी बड़ी देख रेख ख्याल बड़ा करना होता है। बड़ा इसमें कमाल के रंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रखे हैं। तो इनके अगर फ़न की बात करूं तो मैं हमेशा बड़ों से सुनता था कि वो खुशनवीस की तलाश होती है जो चिट्ठी लिख दिया करे बड़े अच्छे ख़त में, और वो मजमून पे भी उसकी वो एक होना, जैसे हम कहते थे चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे। तो ये ऐसी अच्छी चिट्ठी लिखते हैं, ये ऐसी अच्छी चिट्ठी पहुंचाते हैं कि वो मेरा दिल का हाल भी चला जाता है उसमें, मेरे आंसुओं पे भी काबू नहीं रहता, सुर भी ऐसा, तुफैल साहब भी दिखने लगते हैं उसी के अंदर में, और पता नहीं कौन कौन से रंग नजर आने लगते हैं। और मैं ड्रामा का आदमी हूँ, तो एक्सप्रेशन जो है, जिसको आप एक्सप्रेशन कहेंगे वो यहाँ खत्म है। मतलब ऐसा अंदाज, सुर और एक्सप्रेशन का ऐसा अंदाज। तो मुख्तसर सिर्फ इतना कहना है कि एक बात याद रखिए, जो उनके गीत गाता है दुनिया उनके गीत गाती है। वाह 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 वाह। तो हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, तेरी जुल्फों के सब असीर हुए। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। जज़ाकुमुल्लाह। अब मैं अपने प्यारे भाई शेर मियां दाद खान साहब को दावत देने से पहले 1 मिनट चाहूँगा जी। मैं छोटा सा था और मेरे वालिद साहब के साथ मैं जाया करता था, कवालियाँ सुनने का बड़ा शौक था। 1.5 पिंडी हमारा पीर खाना है, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बिल्कुल छोटा सा था, मे भी 7 साल का या 8 साल का होऊंगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है मोहम्मद अली फरीदी साहब और उनके साथ अब्दुल रहीम फरीदी साहब, और उनके साथ मुझसे थोड़ा बड़ा 2, 4, 5, 7 साल तो ये अब्दुल गनी साथ बैठा होता था। गनी खान साहब इधर आओ। ये मोहम्मद अली फरीदी साहब के पोते हैं, और मोहम्मद अली फरीदी साहब जो थे वो उस्ताद मेर अली खान साहब के उस्ताद थे। तो तब से मुझे ये फ़न कवाली का शौक़ है और मैं कवालियाँ सुनता हूँ। मेरे बेटे भी कवालियाँ सुनते हैं, और मेरा पोता जो वो भी कभी रो रहा हो तो हम वो बांधी ते बर्दी कवाली लगा के उसके पास फ़ोन रख देते हैं तो वो खामोश हो जाता है। तो ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मैं मोहम्मद अली फरीदी साहब, आगा बशीर फरीदी साहब, उस्ताद रशीद अहमद खान फरीदी साहब, उस्ताद बख्शी सलामत मुबारक अली खान साहब, उस्ताद मुबारक अली खान नियाज अली खान साहब, उस्ताद मेर अली खान शेर अली खान साहब, मोहम्मद रफ़ीक मुर्गियों वाले, इस तरह और काफ़ी लीजेंड्स हमारे जो पंजाब के कवालों में थे। मैंने उनकी बहुत कवाली सुनी और मैं इन लोगों को बहुत लाइक करता था। मगर जो ठेकेदार कवाल थे ना, अपने फ़न के लिहाज से भी और वैसे भी, वो 2 थे। वो एक उस्ताद रशीद अहमद खान फरीदी थे और एक शेरदाद के वालिद मियाँ दाद फरीदी साहब थे। मैं जमील बाऊ तारक साहब और बाऊ खान जी यहाँ पे बैठे हैं। मैं बड़ा, मेरा ख्याल है ये 79 या 78 की बात है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था वो पायलट स्कूल के बाहर। तो दादा साहब का औरस था, तो वो उनके डर, कवालों के ऊपर डर और खौफ का ये आलम था कि मियाँ दाद खान साहब ने रेड कलर का वो जो लाचा नहीं होता पंजाब का एक टिपिकल, वो पहना हुआ और बोस्की का कुर्ता पहना हुआ, नीचे तिल्ले वाली जो जूती है वो पहनी हुई। तो इस तरीके से वो आ रहे थे चलते हुए कि जिस तरह को बहुत बड़ा कोई डॉन आ रहा है या बहुत कोई बाअसर इंसान आ रहा है। तो मैंने जमील साहब को पूछा, बाऊ खान साहब के जो छोटे भाई फौत हो गए हैं, मैं कहा ये कौन है? कहते चुप कर जा, साइड हो जा, मियाँ दाद फरीदी साहब जा रहे हैं। मियाँ दाद यानी कि उनके रूप का ये आलम था यहाँ रशीद फरीदी साहब। और जिस तरीके से उनकी जिंदगी रोबदार थी उन दोनों की, उसी तरीके से उनकी कवाली भी रोबदार थी। बाबा साहब जब मुहर्रम में उर्स होता था, ये हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं बहुत से बाअसर लोगों से सुना। मियाँ दाद फरीदी साहब जो हैं वो वहाँ पे कहते हैं बड़े बड़े पहलवानों के मैच पढ़ते थे। पहलवानों के मीट को कुश्ती नहीं होती थी, यानी कि नुसरत खान साहब, गुलाम फरीद साहब, री साहब
रशीद फरीदी साहब, नुसरत खान साहब, यानी कि मियाँ दाद फरीदी साहब, शेर अली, मेर अली खान साहब, ये यहाँ पे अपने अपने जोर लगाते थे वहाँ पे। तो हर कवाल की ये एक ख्वाहिश होती है, हमने जो देखा है कि अगर कोई बड़ा कवाल गा के गया, बहुत अच्छा कवाल गा के गया, तो वो कहते हैं यार इसके बाद कोई और पार्टी बैठ जाए, बाद में हम गाएं, ये ना हो कि हमारा फोक ना पड़े। मगर मियाँ दाद फरीदी साहब, वो जो बंदा कापी पे नंबर लिखता था ना, सुना है मैंने कि उनके पास जाता था कि किस किस का नंबर है, मेरा कौन सा नंबर है, तो यहाँ तो नामवर कवाल के ऊपर अपना नंबर लिखवाते थे या उसके बाद लिखवाते थे, ताकि मैं बताऊं कि मैं क्या गाया हूं या मैं क्या गाऊंगा। वो इतने मतलब गैरतमंद उस वक़्त के जो लोग थे। और इन जैसे लीजेंड्स के होते हुए शेर अली खान, क्योंकि बाज़ कवालों को नाम मिल जाता है, नुसरत खान साहब को फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान साहब का नाम मिल गया, इस तरह शेर दाद को बदर दाद खान साहब को मियाँ दाद का नाम मिल गया, शेर अली मेर अली साहब को कोई अपने बड़ों का नाम नहीं मिला, उस्तादों के नाम मिले। इन्होंने जो कुछ किया अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की रहमत से, वो अपने बल पे, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये सदारती अवार्ड याफ्ता भी हुए। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इन्होंने, और मैंने कभी भी कवालियाँ सुन सुन के माशाल्लाह इतना तजर्बा हो जाता है, हूँ तो नलायक न कमा सा शख्स, मगर इन्होंने कभी भी, ये ऐसे कवाल हैं जिनकी मैंने कभी कोई बेमौजू गिरे नहीं देखी, कोई गिरा इनकी बेमौजू नहीं देखी, माजी, हाल, मुस्तकबिल। और मोहम्मद अली फरीदी साहब छोटी छोटी गिरा लगाने के मास्टर थे, उनके बाद अगर किसी ने छोटी गिरा लगाई है तो वो उस्ताद मेर अली खान साहब हैं। और ये अल्लाह ताला का इन पे ख़ास फजल देखें, अल्लाह ताला की इनके ऊपर ख़ास इनायत देखें, इनको किसकी दुआ है अब अल्लाह को पता है या इनको पता है कि मेर अली खान साहब उम्र के इस हिस्से में भी इनकी आवाज़ जिस तरह पहले दिन थी उससे बेहतर ही हुई है, ख़राब नहीं हुई है। शेर अली खान साहब और मेर अली खान साहब की ये हमारा असास है। तो मैं अब बब्बर शेर कवाल के बब्बर शेर बेटे शेर मियाँ दाद को कहूँगा वो 2 मिनट आएँ और शेर अली खान, मेर अली खान साहब के मुतल्लिक बातें बताएं। जी शुक्रिया। और अपने वालिद साहब की भी कोई बात सुनाएं हमें। सबसे पहले सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि जब भी जहाज़ का मुझे फ़ोन आया कि आपने आना, तो जहाज़ आपका थैंक्स यार, आपने अच्छी महफिल में बुलाया और बड़ों की महफिल में बुलाया। और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा आमिर सदीक साहब का कि ऐसे नयाब लोग मेरी नोटिस में नहीं था कि इस तरह के नयाब लोग हैं, लेकिन दिल को बड़ा ये अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग हों तो कोई बूढ़ा ही नहीं होता। मुझे लग रहा है कि अभी भी शेर अली मेर अली खान कहेंगे कि हम कव्वाली शुरू कर रहे हैं। तो ये होता है हौसला, किसी को हौसला देना, और जो किसी के पास होता है वही किसी को कन्वर्ट होता है। अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है तो आपने इनको इज़्ज़त दी है, और हम सबका ये फ़र्ज़ है। इनके फ़न के बारे में मैं यही बोलूँगा, कैसे फनकार काम पैदा होते हैं, जिन्होंने अपना नाम और अपने काम से सब लोगों को मनवाया, तो आज अल्लाह पाक ने इनको इस सीट पे बिठाया। और मेरी दुआ है जब भी मैं इनको मिलता हूँ मैं कहता हूँ आप मेरे बड़े हैं, तो अल्लाह पाक इन दोनों को सलामत रखे। और एक और बात ये है, इनकी जो जोड़ी है ये हमारे लिए मिसाल है। अल्लाह करे भाई ऐसे ही हो कि कपड़ा भी एक जैसा, दिल भी एक जैसा। तो ये मिसाल है और ये लेसन है हम लोगों के लिए, जो जनरेशन न्यू है, कि ऐसे भाई होना चाहिए। और मेरी दिली एक दुआ है, हम बाबा फरीदुद्दीन के दिशकर रहमतुल्लाह अलैह के सगे दरे फरीद हैं, और ये सारा जो करम है ये वली अल्लाह का करम है। कोई भी माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता, नज़र इनायत होती है। और जब नज़र इनायत होती है, अगर दरे मौला गाजियाबाद सरकार की हो जाए तो फिर तो प्यारी बात है। मौला पंचन पाक की हो जाए, हुसैन बादशाह,
تو یہ کلرز ہیں. آپ دیکھیں جس دربار سے کسی کو نسبت ہے اس کا وہی کلر اس کو نظر آتا ہے. بارگاہ فرید میں میرے گنجے شکر شہنشاہ کے حضور میاں کے دربار میں جس نے بھی حاضری دی تو وہ استاد میاں داد خان صاحب بن گئے, استاد یوسف علی خان صاحب بن گئے, استاد شیر علی میرے علی خان بن گئے, استاد بدر میاں داد خان بن گئے. تو بنانے والی ہستی اللہ کی ذات ہے. ہاں جب ہم دریا کرتے ہیں اللہ سے اور ولیوں کے در پہ یا مولا کے در پہ, ہم سارے عاجز ہی ہیں. میں اتنا کبھی بولتا نہیں ہوں, نہ مجھے بولنا آتا ہے, لیکن یہ میری اندر کی کیفیت ہے کیونکہ ہم عاجز ہیں سارے. کرٹیسائز تو ہم سب کو کرتے ہیں, کوئی بسورا ہو جاتا ہے کہتے ہیں یار پھر ہم کس طرح, تو بندہ سوچے کبھی تم بھی بسورے تھے یار. تو جب سر دیتا ہے وہ تو اللہ کی ذات دیتی ہے, تو جب اللہ کی ذات سر دیتی ہے پھر وہ اللہ عزت سے نوازتے ہیں. تو مجھے کسی کی مثال عامر صاحب یاد آئی کہ اللہ پاک کسی کے جب کسی کو دیتا ہے نا عزت کے کپڑے تو وہ کبھی نہیں اترنے دیتا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو بڑوں کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. اور کبھی بھی مجھے جس طرح انوائٹ کیا میں آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا. اب میرے دل کی کنڈیشن یہ ہے کہ میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اچھا کیا میں ادھر آیا ہوں اور اپنے بڑوں کی میں اس جو اللہ پاک نے ان کو عزت عطا کی میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اعجاز شیر علی کے لیے میری دلی دعا ہے اللہ پاک اس کو ایسے کامیاب کرے اور اسی طرح اور ایک آپ کو اعجاز کے سر پہ سلامت رکھے اور ہمارے سب کے سر پہ سلامت رکھے. آپ لیجنڈ ہیں, آپ بڑے, بہت شکریہ. یہ تھے استاد شیر میاں داد خان صاحب. میں استاد پرویز پارس خان صاحب تشریف لائے ہیں جی, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی. بہت شکریہ جی, آپ کی مہربانی. بہو خان جی, حاجی دلدار خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور استاد میر علی خان صاحب استاد شیر علی خان صاحب کے کوئی دو باتیں ہمیں بتائیں. میں اب آپ کو ایک ہنسی والی بھی اگر آپ اجازت دیں تو بات بتا دوں. وہ ایک یہاں پہ موجود نہیں ہے, اقبال طبلہ بجاتے ہیں, ان کو اقبال تھتھا کہا جاتا ہے, وہ تھتھلاتے ہیں. تو وہ اس نے بات سنائی ہمیں, کہتے ہیں میں میاں داد خان فریدی صاحب کے ساتھ, وہ بھی پاک پتن کا رہنے والا تھا, قوالی کر رہا تھا. تو بابا صاحب کے دربار میں کوئی حاضری ہوتی ہے 5, 7, 8 منٹ کی, تو وہ اکثر قوال جو وہ ایک ہی چیز وہ جو یاد ہوتی ہے وہی میرا خیال ہے گاتے ہیں. تو بیگ شیگ کاپیوں والا نہیں لے کے جاتے. تو کہتے ہیں قوالی ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک صوفی آ گئے, جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو صوفی کہا جاتا ہے. تو کہتا ہے انہوں نے نا میاں داد خان صاحب کو فرمائش کی فارسی کی, میرا خیال ہے اگر بینم شب ناگا, تو انہوں نے وہ شروع کر دی. جب شروع کر دی تو وہ جو پیسے دینے والے صوفی تھے انہوں نے نا 500 کے پیسے پھینکنے شروع کر دیے. تو آگے تو قوالی بیگ تو تھا نہیں, تو انہوں نے پیچھے اپنے ساتھیوں کو پوچھا کہ کسی کو آتی ہے, تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ پڑے. تو یہ طبلہ بجا رہا تھا پیچھے اقبال نا, تو یہ کہتا جب مینو آتی. انہوں نے وہ جب اپنا وہ چکر پورا ہوا تو کان کیا اس کی طرف ایسے کر کے نا, وہ شیر کہہ کے تو کیا, تو وہ اڑ گیا. وہ آگے کہنا تھا شاید بگردے کعبہ کہہ گردم بگگا کیا. تو پھر انہوں نے میاں داد خان صاحب نے منہ آگے کو کر لیا. پھر وہ چکر کار کے پھر آئے, جب اس کی طرف کیا تو پھر ڈر بہت تھا میاں داد خان صاحب کا. تو پھر تو پھر انہوں نے کہا رہنے تو اب صوفی چلا گئے. تو میں تو چونا منڈی میں پہلے شیراں والا گیٹ میں رہتے تھے, جی پلوان صاحب, کوما پلوان صاحب, میرے چچا مرحوم سارے وہاں پہ رہتے تھے. تو ساتھ ہی چونا منڈی تھی. تو سارے بڑا ہماری فیملی ان لوگوں سے پیار کرتی تھی, یہ ہمارے ساتھ پیار کرتے تھے. تو میں ان کو کہتا تھا جو مجھے قوالوں کی باتیں سنائے گا میں اس کو پیسے دوں گا, اور میں دیتا تھا. اور وہ مجھے بڑی بڑی ایسے قصے سناتے تھے. یہ لاؤدین یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, لاؤدین فریدی کدھر ہے جی, رشید فریدی صاحب کا بیٹا وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے. تو یہ دونوں بھائی جو ہے نا, وہ بڑے مجید فریدی صاحب اور رشید فریدی صاحب آپس میں یہ لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے. تو ایک بندے نے ساتھی نے بات بتائی کہ وہ رشید فریدی صاحب نے کہا مجید فریدی کو کہ یار یہ جب جو ہارمونیم ہے نا
یہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر لو، جب میں پلٹا کرتا ہوں تو میرا نا ہاتھ لگتا تمہیں. تو بھی آگے اس کا بھائی تھا، اس نے بجائے اس کے کہ کوئی 2-4 انچ آگے پیچھے کر لیتا، اس نے وہاں سے وہ ہارمونیم اٹھایا تو وہ جا کے وہاں جہاں پہ صوفہ ہے نا وہاں جا کے رکھ دیا. کہتے جی ادھر ٹھیک ہے. اب رشید فریدی صاحب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں، ابھی یہ نزدیک ہے. اس نے وہاں سے ہارمونیم اٹھایا، وہاں پہ ایک سائیکل کھڑی تھی سٹینڈ والی کیریئر والی، وہاں جا کے رکھ دیا. کہتے ہیں ادھر ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہاں ادھر ٹھیک ہے. تو یہ وہ باتیں سناتے تھے، پتہ نہیں سچی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں جھوٹی ہوتی تھی، تو ہم تو محظوظ ہوتے تھے سن کے. تو اب میں دعوت دوں گا دلدار خان صاحب کو، وہ تشریف لائیں. یہ بھی لیجنڈ ہیں اور انہوں نے نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ اتنی جو ہے وہ سنگت کی ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے پہلے نامور استاد جو ہم نے سنا، وہ ایک استاد نصیب خان صاحب تھے جو قوالی کا طبلہ بہت اچھا بجاتے تھے استاد تھے. ایک استاد مختار صاحب تھے فیصل آباد والے. ان جیسے لوگوں کے بعد اگر کسی نے اپنا نام منوایا ہے تو وہ استاد دلدار خان صاحب. شکریہ. جی السلام علیکم سب کو. تو پہلے تو مبارک استاد میر علی خان، شیر علی خان. قوالی میں ایسے بیٹھنا یا کوئی، یہ میں پہلی دفعہ سمجھو تقریر یا میں کیا آگے یہ میں کام تو پاک پرت شیر علی خان، میر علی خان، میاں دال خان اور استاد نصرت فتح علی خان بخشی سلامت. تو ایسے قوال اکٹھے جب تو استاد کا جو نمبر تھا نصرت فتح علی خان کا، وہ سوچ کر انہوں نے رکھنا کچہری بھی بعد میں ٹھیک ہے اینڈ پہ. تو بات تو میں ان کی کر رہا ہوں. ایسی ایسی میں نے بھی قوالی سنی، میرے بھائی ہیں میرے سے بڑے، اور بڑا بڑا مزہ آیا. تو پاک پتن شریف مجھے یاد ہے، ناز شریف تھی پرے پرے ایسا کچھ ایسا ہی کوئی ہو نہیں کرتے پڑے پڑے. جی جی. تو ایسا مزہ بہت دفعہ مزہ آیا، لیکن وہ ایسا مزہ آیا. میں خان صاحب کا کہہ رہا تھا بھائی قوالی بس ہو رہی کرنی تو ہم نے بھی قوالی، تو جس کا بھی مزہ آ جائے، یہ ایسا کام ہے جس کا بھی مزہ ہے اس کو داد دینی چاہیے. تو میرے بھائی ہیں میرے دل سے، اور میں ان کے ساتھ بھی گھومتا رہا ہوں، تو بڑا مجھے مزہ آتا ہے. اور ان کے لہجے کا قوالی کا سٹائل ہے، تو وہ آج کل تو پتہ نہیں چلتا، تو سٹائل ان کا تھوڑا الگ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو میں بھی یہی کام کرتا ہوں. تو جو سٹائل ہے گرا کا، تو بڑے بڑے میں نے سنے، انہوں نے ان کو فریدی صاحب کو سمجھو پالش کیا، استاد فتح علی خان مبارک کو ان کو سنا، اور بھائی شیر علی ان کے بھی شگرد ہے، بخشی سلامت کے ہے شگرد، تو ان کے بھی یہ ماننے والے ہیں. تو ایک دفعہ میاں دال تھا، اتنی اچھی قوالی ہو رہی، تو میں نے آٹا بنایا تو سردی، تو 3:30 بجے ٹائم کچہری، جو بڑے دیوان صاحب بیٹھے، تو میں نے کہا ہاں سب قوالی میرے اپنے دل چ انہوں نے تو کرنی سی، پھر میرے دل چ بھی تبلا بھی امجد بھائی بڑا اچھا گاگرا لاؤن ڈایا نے، کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ ہوں. پھر بھی میں آٹا لا کے اتنا مزہ. میاں لال خان ایک دفعہ توسے شریف، میں نے اور ڈرائیور کو پوچھا کوئی آپ کے پاس قوالی ہے، بڑا لمبا سفر ہے بھائی صاحب. تو کہتے ہیں بخشی سلامت ہے، نصر صاحب ہے وہ جو ڈرائیور تھا. میں نے کہا یار میاں دال لگا دو. انہوں نے قوالی لگائی، تو بھائی میرے لیے ایک انترے کا انہوں نے
وہ چکر بڑا اچھا کہتے تھے جب انترے میں جاتے تھے تو میں ایسے چیر پہ پڑا تھا لمبا تو آگے لفظ ایسے پکڑا انترے کو ایسے سامنے آیا تو میں ایسے اوپر میرا سر لگ گیا چھت کے اوپر. تو ایسے ایسے لوگ جو سچے قوال وہ آج کل کی بات جو بھی 2 باجے بنا لیتا ہے تبلے والا ہو جاتا تو قوال ہو جاتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے جو انہوں نے کیا ہے تو سمجھ سوچ کر کیا. تو سب اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے کیا ہونا چاہیے. ہم بھی کام تو یہی کرتے ہیں لیکن میں خوشی ہے تو خوشی ایسی بھی نہیں بھی یہ بالکل نہ گائیں. یہ گائیں گے تو مزہ آئے گا نا. مہربانی. بہت شکریہ. یہ تھے دلدار خان صاحب, انہوں نے بھی ساری زندگی لے ہی اتنے تھلے کی ہے. شکریہ خان صاحب. کالے خان بھاگ علی خان کو بلانے سے پہلے اگر آپ کو ایک اور بات سناؤں, استاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ آج کل مجھے کوئی پیسے دے نا کہ ان کی قوالی سنو کسی کی, تو میں خدا کی قسم نہ سنوں, تکلیف محسوس کروں. ان کانوں نے جو جو قوالیاں سنی ہیں, جو جو استاد سنے ہیں, ان کے والد صاحب کی ایک دن 22 منٹ کی ایک ریکارڈنگ ہے سامل موڑ مہارا, اور میں روتا نہیں ہوں, اتنی قوالی سنی ہے مجھے. میں زندگی میں 4 یا 5 مرتبہ رویا ہوں. ایک مرتبہ وہ 22 منٹ کا ہے, پاک وطن میں شاید ہوئی ہے. ایک دفعہ میر علی خان صاحب سسی گا رہے تھے, ایک دفعہ یہ صابری دربار میں گا رہے تھے کر رحم فرما, اور میں آنسو نکل آئے تھے. ایک آدھی مرتبہ بخشی سلامت گا رہے تھے, یا 2 3 4 مرتبہ استاد رشید احمد خان فریدی صاحب گا رہے تھے. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا آج وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے میں کسی کو نہیں مانتا. آج میں وہ جیسے ابھی دلدار بھائی نے کہا کہ 2 باجے لیتے ہیں ایک طبلہ اور نام سے پہلے استاد لگا لیتے ہیں. استاد یہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے لیجنڈ میں ہو کے اپنا کام اس کا لوہا جو ہے نا وہ منوایا. میں آگے بتا رہا تھا جو ان کے استاد میر علی خان صاحب کے استاد تھے, استاد محمد علی فریدی عبد الغنی کے دادا تھے. تو کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا تھا اگو اس کو کہتے تھے, چونا منڈی کا تھا, ذوالفقار عرف اگو. تو وہ ابھی وہ ربائیاں وغیرہ کہہ رہے تھے تو اس نے نا وہ ترگٹیں نکال لی, طبلے کو چھیڑنا شروع کر دیا. تو انہوں نے اس کو ایک دفعہ منع کیا, اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی کام کیا, انہوں نے پھر منع کیا. خیر وہ قوالی کر کے جب آئے اپنے ڈیرے پہ تو انہوں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی جب میں ترگٹاں جتھے نہیں کڈنیاں تو میں گھر جا کے کڈنیاں نے. اور ایسی وہ بحث چھڑی استاد محمد علی فریدی صاحب کی, غنی کے دادا جی کی, اور اس وہ طبلہ نواز کی فوت ہو گیا ہوگا. اس نے کہا جی کہ طبلہ نہ بجے تو قوالی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں اگو کرن والے ہون تے طبلے تو بغیر بھی قوالی ہو جاتی ہے. بات ختم ہوگی. اگلی محفل آئی تب وہ آٹے کو نا آٹا لگاتے تھے اپنے وہ چھوٹے جس کو پوڑا کہتے ہیں نا اس کے اوپر. تو اس نے وہ آٹا اوٹا لگا کے اس نے پیچھے رکھ کر حرکت کوئی نہیں کی. 2 یا 3 گھنٹے قوالی ہوئی. جتنے پیسے عام روٹین میں ہوتے تھے اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ پیسے ہوئے. اور جب قوالی ختم ہوئی تو انہوں نے اگو کو کہا اگو بس قوالی ہوگی, ہونا تھا آٹا لا لا, طبلہ نہیں بجنے دیا. وہ استاد تھے, یہ استادی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, باؤ خان صاحب جمیل خان کے بڑے بھائی, یہ ان کے والد صاحب تھے محمد حسین. وہ کہتے ہیں کہ محمد علی فریدی صاحب نے کہا ہمارا ایک ہارمونیم پلیئر نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلو. وہاں گئے, جس وقت وہاں پہ گئے تو وہاں جو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کافی ہی سنتے تھے. جب کافی شروع کی تو ہر کافی کے بعد سست سما تھا وہ 1 روپیہ دے دیتے تھے. پھر دوسری کافی گائی, کافی جب ختم ہوئی پھر 1 روپیہ نظر کر دی محمد علی فریدی صاحب کو. تو کہتے ہیں کہ 100 کافیاں گائیں بابا محمد علی فریدی صاحب نے اور 100 روپیہ لیا. یہ استادی ہے. آج کل آپ کہیں کسی کو میں بہت گناہ گار نالائق نکما ہوں, آج کل کے بچوں میں سے جس کو مرضی میرے سامنے بٹھا دو میں اس کو لاجواب کر دوں گا. ان سے زیادہ علم قوالی کا مجھے ہے. میں نے اتنے استاد لوگوں کی قوالیاں سنی ہیں کہ مجھے آج کل کے قوالوں کا بالکل جو ہے نا وہ مزہ نہیں آتا. نصرت خان صاحب سے میری بڑی دوستی تھی.
कई दफ़ा नुसरत खान साहब को मैं कान में 1.5 पीढ़ी प्रॉम्प्ट भी करता था और हमारे घरों में आना जाना था, हमारी उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी। और बदर खान साहब 1.5 पीढ़ी आते थे। शेरदा तो छोटा भाई की तरह, इसने तो बहुत बाद में कव्वाली शुरू की, लेकिन ये आजकल के दौर में अगर मुझे कव्वाली सुनने को कोई कहे ना, तो ये नहीं कि ये सामने बैठा हुआ, मुझे इसकी कव्वाली पसंद है। अब मैं काले खान साहब 2 मिनट के लिए आप आए और उसके बाद आखिरी जो है वो उस्ताद परवेज पारस खान साहब आएंगे। आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं ना चीज़ बस थोड़ा सा बोलूँगा कि सबसे पहले चौधरी साहब को मैं बड़ा इस चीज़ की दाद देता हूँ, फनकारों से प्यार करते हैं। तो आज जो ताजपोशी की तकरीब चौधरी साहब ने रखी, ये बड़ी अच्छी बात है। आप दूसरों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि कव्वाली जो कव्वाली की बात है, वो बड़े बड़े लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे उस्ताद फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान साहब, उस्ताद असद अली खान साहब, तैम मियांदाद, सुभान अल्लाह, बख्शी अहमद कवाल, रशीद फरीदी, मोहम्मद अली फरीदी, सारे बहुत बड़े लोग हुए। लेकिन उन दौर में जिस तरह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कव्वाली को साफ किया, कव्वाली में वो जो शोर गुल था वो बड़े अच्छे तरीके से खान साहब ने किया। उनके बाद मैं सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ चाचा जी शेर अली खान, उस्ताद मेहर अली खान साहब को। इन्होंने बड़ी सुरीली कव्वाली की, कव्वाली में सुर को कायम रखा, शायरी को कायम रखा, गिराबादी सब आपको पता ही है जो चाचा जी का एक स्टाइल है। हालांकि बहुत बड़े उस्तादों के शागिर्द हैं उस्ताद बख्शी अहमद साहब के, लेकिन उनके बावजूद इन्होंने अपना स्टाइल मनवाया, जो सही बात है। तो आजकल काफ़ी इनका स्टाइल गाया भी जा रहा है, खान साहब का गाया जा रहा है, नुसरत फ़तेह खान साहब का, और चाचा जी शेर अली मेहर अली साहब, लोग कव्वाल स्टाइल गाते हैं। तो मैं सलूट पेश करता हूँ। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, और मैं एजाज भाई के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। कामयाब हैं भी, लेकिन अल्लाह ताला और कामयाब करे। थैंक यू, शुक्रिया। उस्ताद परवेज पारस खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। इनके लिए बहुत सारी कहानियां थी और ये क्लासिकल बहुत बड़े माशाल्लाह उस्ताद हैं। हेलो, आपका आपने तो बहुत कुछ बयान कर दिया है। अब आखिर में इतने बड़े लोगों के बारे कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दरअसल हम तो ख्याल गायकों के शागिर्द और कव्वाल बच्चों बड़े मोहम्मद खान के घर के, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यही कहते थे, ये नहीं कि मैं ये शेर इनको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। बहुत बुजुर्ग, अब ख्याल गायक माने या ना माने, कि ख्याल गायकी जो है ये कव्वाल बच्चों की देन है। क्योंकि जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, कि आप खुद सारे लोग लायक लोग बैठे हैं, कि ख्याल में तान की फिरत बड़े मोहम्मद खान साहब ने शुरू की, उनके नाम के साथ बड़े मोहम्मद खान कव्वाल लिखा जाता था। उनके वालिद शक्कर खां कव्वाल, बकर खां कव्वाल, आगे उनके जो वालिद उनके मामू थे गुलाम रसूल खां जानी, उनके नाम के साथ कव्वाल लिखा जाता था। उनके वालिद ताज खां, मामू मौज खां, ये लोग कव्वाल कहलाते थे। तो ये ख्याल और कव्वाली एक सिलसिला है। वजह ये थी कि जो उतनी देर तक ख्याल गायक नहीं बनता था जितनी देर तक वो बुजुर्गाने दीन के कौल न गाए। तो मेरी इतनी उम्र हो गई, हमने भी बड़े बड़े बुजुर्गों को कव्वाली करते सुना। शुरू में हारमोनियम पे नगमा लगता था, तबले वाला कोई टुकड़े कहता था,
قوال الاپ کرتے تھے ایک سکون ہوتا تھا کہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے خیال کا الاپ اور خیال کی بلند سے دور تک. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، خیر بات لمبی بھی کیا کرنی، بڑے آپ نے سب لوگوں کو سنا ہے تو بات تو خان صاحب کی کرنی. تو انہوں نے جہاں قوالی کو خوبصورت بنایا اپنے استادوں سے سیکھ کر، کیونکہ میں تو اب گائک نہیں رہا، عمر بھی ہو گئی، تو سکھانا ہی میرا کام ہے. لیکن میں یہ خیال گائکی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، پچھلے دنوں ہری پرساد چورسیا کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص گانے بجانے والا اس میں خوبصورتی نہیں پیدا کر سکتا تو اسے چھوڑ دیں. خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک درد، سکون پھیلا، کہ سر لگے اور لوگ آنکھیں بند کرتے کہے کہ واہ واہ کیا چہرہ. تو قوالی میں تو الفاظ بھی ہوتی ہیں، بزرگان دین کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے، اولیاء انبیاء کے بارے. ہمارے خیالوں میں بھی ایسی بندشیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ شیر علی مہر علی انہوں نے قوالی میں شروع کرتے ہوئے ایک سکون پیدا کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، انہیں بہت مبارک ہو. ایک دو بار ان سے میری فون پہ بھی ملاقات ہوئی، ویسے بھی ملاقات ہوتی رہتی. میرے شاگرد فہیم مظہر انہوں نے فردوس گوش پہ انہوں نے بلایا، بہت اچھا کام کیا، جہاں کے لائقاری بھی کی. اور اس سے زیادہ مجھے جو پسند ہے، حالانکہ میرے استاد چھوٹے غلام علی خان وہ بہت تیار تھے آپ جانے، مطلب تان کے کہنے میں، لیکن مجھے گائکی میں سکون اور سر کا لگاؤ اور اس کی سمائی زیادہ پسند ہے. تو وہ یہ خان صاحب قوالی کی گائکی میں بھی وہ سکون مجھے نظر آیا. تو انہیں بہت بہت مبارک. تو یہ ان سے ہماری اور ملاقات رہے گی. اس کے ساتھ میں اجازت. یہ تھے جی استاد پرویز پارس خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں گدی نشین آستانہ عالیہ گڑھی شریف جناب محترم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کو درخواست کروں گا وہ آئیں اور چند الفاظ جو ہے وہ بیان کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب مہر علی خان صاحب، شیر علی خان صاحب اور دنیا فن موسیقی کے تمام بے تاج بادشاہ حضرات، یہاں بہت بڑے نامور شخصیات جن میں سر فہرست حضرت بابا محمد یحییٰ خان صاحب ہیں اور فن کے لوگ موجود ہیں. خوبصورت انہوں نے اظہار خیال کیا. گورنر ہاؤس میں بھی تقریب ہوئی، یہاں بھی ہو رہی ہے. میں اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کر سکتا ہوں کہ جب کوئی بچہ ڈگری کے لے کر آتا ہے تو اس وقت والد کی خوشی کا جو عالم ہوتا ہے آج میرا بھیا ہے، کیونکہ آپ کی اس برادری کا تعلق ہے اور ہمارے آستانے کا یہ سرمایہ. اس لیے یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور قوال کس کو کہتے ہیں کہ وہ قول ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ اس کا تکرار کرتا رہتا ہے، اس کو قوال. میں نے علماء سے کچھ ان کے سامنے جانوے تلمس طے کیے ہیں.
कुछ अर्सा उनके पास पढ़ता रहा हूँ और उनका बेहद एहतराम करता हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन एक बात मैं सच्ची बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर 4 उलमा से आप एक मसला पूछें तो एक जैसा नहीं बताएंगे। एक कुछ और सवाल जवाब देगा, कोई दूसरा और दूसरा और। ये 14-15 बंदे आदमी होते हैं, बात भी एक करते हैं, सुर भी एक है, लय भी एक है, हारमोनियम भी वही कह रहा है, सरंगी भी वही कह रही है, तबला भी वही कह रहा है। इनमें एक यकसानियत का दर्स और सबक है कि अगर इकट्ठे हो जाओगे तो असर होगा। इनकी मैं तारीफ में तो रतबुल लिसान हूँ। इन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है और वो इल्ज़ाम है जो सागर सिद्दीकी पे भी था। सागर ने कहा फ़कीह शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। इन्होंने दर्द की दौलत को आम किया है। ये महफिल में हमारे आस्थाने पर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ये गा रहे हैं और हमें ये एहसास होता है कि ये महफिल इस दुनिया में नहीं हो रही, किसी और दुनिया में हो रही। और कोई महफिल ऐसी मुझे याद नहीं है, बचपन से मैं भी इनको सुनता रहा हूँ, जिसमें कोई ऐसा आदमी ना हो जिसकी आंख अश्कबार ना हो। और ये आंसू बड़ा कीमती होता है आंसू। एक आंसू कह गया सब हाल दिल का, एक आंसू कह गया सब हाल दिल का, मैं समझा था ये जालिम बेज़बां है। तो ये दर्द की जो दौलत है ये सस्ती नहीं है, बड़ी महंगी है। एक मरतबा कोट मिशन शरीफ में ये हजरात कवाली कर रहे थे और न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, ये बोलते हैं तो दुनिया खरीद लेते हैं। तो वहाँ कैफियत थी एक, हर तरफ एक गरीब आदमी जो पता नहीं क्या बेचने आया था और बेच के कुछ उसने क्या खरीद किया था वो बाद में अंदाज़ा हुआ कि उसके पास 1 रुपया था, एक रुमाल के एक कोने में बंधा हुआ था। उसने उसको खोला, मैला सा नोट, कई तहें उसकी थी। वो रोते हुए, आंसू बहाते हुए, नाक से पानी बह रहा था, आंसुओं से पानी बह रहा था, उस तरह आके पेश कर दिया। आपको जो लाखों रुपए मिलते हैं ना, उनकी वो कदर व कीमत नहीं होती जो उस 1 रुपये के नोट। जाके बैठ गया। अब फिर वो बेकरार था कुछ नज़र करने के लिए और कुछ था नहीं। उसने एक पोटली थी उसके पीछे, उसको खोला, उसमें 4 अंडे थे, 1 टूट चुका था और 3 बाकी थे। वो जाके नजर कर तो वो एक बोली थी, तेनू लै दूं सलीब पर काले तो भावे मेरी बाजू बिक जाए। तो ये अजीब दौलत होती है, अजीब चीज़ होती है। तो हजरात ये साहिबान इन्होंने दर्द की दौलत को आम किया है और इनमें अदब न्याज भी है और बावुज़ू कवाली करते हैं और नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। ये चीज़ें भी हम लोगों में दस्तयाब होती हैं जो इनको इनके साथ। और इस वक्त तो वक्त नहीं है कि मैं बयान करूं कि इनकी बैत का वाक़या क्या हुआ था। वो कभी आप इनसे खुद सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी कबूलियत किस तरह से हुई है। बहरहाल इनका वजूद हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। आज इनको जो ये एजाज़ दिया जा रहा है, इस पर मैं बेहद खुश हूँ और आप सब हजरात का मैं मशकूर हूँ कि आपने ये, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि ये हमारी चीज़ है और उनके लिए आप ही सब कुछ कर रहे हैं। और मलिक आमिर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ
ये एहतमाम किया है और उनके बरखुरदार एजाज अली खान साहब ने बड़ी मेहनत करके ये काम सर अंजाम दिया है। अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ये सदाबहार रहे, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत, ताकत, तवानाइयाँ अता फरमाए और इनको सिहत व आफियत के साथ रखे। हाफिज़ का एक शेर है कि तनत बनाज तबीबा नियाज़मंद मुबाद, वजूद नाज़ो को ताजुर दाए गंज मुबाद। मेरी यही दुआ है कि कभी किसी हकीम के, डॉक्टर के मोहताज ना हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत से सरफराज फरमाए। ये थे जी हज़रत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी, आस्ताना गढ़ी शरीफ। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इस गरीब खाने में तशरीफ़ लाए और हमें रौनक बख्शी। अब एक छोटी सी तकरीब, फिर उसके बाद खाना, फिर उसके बाद महफ़िल इस्मा होगी। वो जितनी भी मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनके होते हुए मैं तो कोई बात नहीं कर सकता कि 10-10 मिनट है, आधा घंटा है। वो जितनी भी ये कहेंगे, क्योंकि उसके बाद इन्होंने फैसलाबाद भी जाना और मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद हो जाती है, इसलिए हमने दोपहर का फंक्शन जो है रखा। मैं बेसिकली उस्ताद रशीद अहमद ख़ान फरीदी साहब की कवाली को बहुत लाइक करता था, मगर जो हकीकत है वो कहनी चाहिए। अलाउद्दीन के साथ, माजरत के साथ, बहुत अच्छे कवाल थे, बहुत अच्छा क्लासिकल गाते थे, बहुत अच्छी नात गाते थे, बहुत अच्छी गज़ल गाते थे। मगर जब पंजाबी की बारी आती थी तो मियाँ अब्दुर्रहमान साहब तो कहते हैं कि इन्हों की बकरी बह जाती सी, रशीद फरीदी लोगों मजाक में कहते थे। तो पंजाबी बख्शी सलामत और बख्शी सलामत के बाद उस्ताद मेर अली खान साहब, शेर अली खान साहब, शायद जो इस फ़न को, जो कवाली से वाबस्ता हैं, वो मेरी बात तक ज़रूर पहुँचे होंगे। और दूसरा काफ़ी, वो भी बख्शी सलामत, मुबारक अली, नियाज़ अली और उस्ताद शेर अली मेर अली खान साहब। खान साहब इसी तरह है जी, बात दुरुस्त की है जी। तो अब ये तमाम हमारे काबिल एहतराम मेहमान जो स्टेज पे भी मौजूद हैं और स्टेज पे कमी होने की वजह से सामने भी मौजूद हैं। वैसे बेसिकली तो जितने भी मेहमान आए हैं उनकी जगह हमारे सर पे है, क्योंकि सारे हमारे सर का ताज हैं जी। तो अगर कोई स्टेज पे नहीं आ सका तो मैं उसके लिए माज़रत खाऊं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, वरना सब दोस्त यहाँ पे होते और मैं वहाँ पे होता। तो अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हम उस्ताद मेर अली खान साहब को, उस्ताद शेर अली खान साहब को और एजाज को, मैं उस्ताद तो नहीं अभी कहूँगा, एजाज शेर अली को कुछ हमने शील्डें जो हैं वो बनवाई हैं और वो मैं कहूँगा कि आपकी मौजूदगी में उनको दी जाएंगी। शुक्रिया। बाबा मोहम्मद याया साहब, हाजी नज़ीर साहब, शेरदार साहब, मियाँ अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश करूँगा, पारस खान साहब से गुजारिश करूँगा, नूरुल हसन साहब से गुजारिश करूँगा, अरशद साहब बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा। भाई आप थोड़ा वेट कीजिएगा सर, भाई मोबाइल पे चेक चलिए थोड़ा थल्ले करो, फेस नहीं आ रहा जी सर। यहाँ सर सामने देखिएगा सर, सर थोड़ा सा सामने देखिएगा। लाउदीन आ जाओ, गनी खान साहब ने बुला ला। ऐसे फेस करें। मामू आ जाओ, जहाज से मामू, मामू आ जाओ, जहाज नू ले आओ, मेहर साहब नू ले आओ। लाउदीन आ जा, गनी नू ले आ।
पारस खान साहब तशरीफ लाएं। थोड़ा सा आप थोड़ा सा आगे से भाई उनको बनाने दे जो मीडिया के बंदे हैं यहाँ ये उस्ताद शेर अली खान साहब के भाई तरह एक सर जी फेस तो थोड़ा है थल्ले करना थोड़ा जा फेस तो थल्ले करो सर आगे नहीं है, यहाँ से जूम कर लेना, पीछे जगह नहीं है। जरा फेस तो थल्ले करो थोड़ा जा उधर आ जाओ वही कह रहे हो जरा फेस तो थल्ले करो ਇੱਥੇ चलो जी थोड़े थोड़े खुले जाओगे ना थोड़ा पीछे थोड़ा 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 खुल जाओगे ना हाँ ठीक होगा जैसे तुझे भी पीछे आओ आओ जी याद चलो ठीक है सलमान भाई वो दूसरा हाथ रखें इधर दूसरा हाथ रखें आप इधर ये इधर आप देखिए सर थैंक यू भाई आगे से पीछे हट जाओ भाई सर सामने देखिएगा जी उधरों दी आओ रहमत तू ते अपना भाई नहीं उधरों दी आओ लाउडी ने इधरों दी ना आज आओगे आगे पाए ये आपको ना हमने आपको थोड़ा आगे खड़ा हो शबाज भाई आना शबाज कादरी साहब शबाज भाई आइए आना आपने अपनी मदद आपके मैं दिया जी सर एक सामने देखिएगा सामने भाई थोड़ा पीछे ना भाई सामने देखिए होगी तस्वीर वेट करना है एक मिनट थैंक यू सर तो साहब एक मिनट ठीक है जी सब एक मिनट
थोड़ा जिहा साथ में बैठो, थोड़ा जिहा नाल जी सामने देखिएगा, सामने क्या कहने क्या कहने क्या बात आज काउंसिल वाले में पढ़ने पाओ यार, काउंसिल को पढ़ने पाइए आज क्या है भाई, क्या बात है जी सामने देखिएगा, सामने सामने चल सब सामने बैठ के देखिए जी जी वैसे देखिए जी सर। और